دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بلونت سنگھ کی کہانی دیش بھکت۔ شام ہو چکی تھی۔ میں چھوٹے بھائی کو چٹھی لکھ رہا تھا کہ اتنے میں چچا اندر داخل ہوئے۔ بغیر کسی تمہید کے بولے، سنو، آج ذرا خاص کام ہے، تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ خاص کام والے الفاظ سن کر میں نے سرہانے سے صفا جنگ اٹھائی، یعنی ایک قسم کی کلہاڑی جو کہ سکھوں کا ہتھیار ہوتا ہے، اور اسے فرش پر ٹیک اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں کا محلہ ہے، میاں لوگوں کا، سمجھے؟ اور پھر روپے کا معاملہ، یہ ان کا بہت فرسودہ اور بے معنی بہانہ تھا۔ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہ تھی، بس ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ والد صاحب سے بھی کچھ دعا سلام تھی، مجھ پر مہربان تھے اور قدرے بے تکلف بھی۔ میری عمر تقریباً 22 برس کی تھی، قد ذرا نکلتا ہوا، چوڑا سینہ، سڈول بازو، مضبوط ہاتھ پاؤں، باوجود 4 مرتبہ کوشش کرنے کے بھی ایف اے پاس نہ کر پایا تھا۔ چچا کا میانہ قد، گندمی رنگ، کھچڑی داڑھی، دبلے پتلے مگر سخت ہڈی کے تقریباً 45 سالہ بزرگ۔ انہیں پنجاب چھوڑے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس جگہ ان کا ایک اینٹوں کا بھٹا تھا، تھوڑا بہت ٹھیکیداری کا کام بھی مل جاتا تھا۔ غبار اور دھند کے گہرے کفن نے شہر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ بازاروں میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ یکے والوں کے آوازیں، ان کی گالیاں اور قوالیاں، دور دھندلکے میں مسجد کے قریب کسی گھر کی چھت پر سفید سفید کبوتروں کی ٹکڑیاں ہوا میں پرواز کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہم گھنٹے کے قریب سے ہو کر بیگم سرائے کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ نکڑ پر بادشاہ خاں پٹھان کی چائے کی دکان تھی۔ اس جگہ سود خوار پٹھانوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ بیٹھے چائے پیتے یا قہوہ اڑاتے۔ 2-3 بے بالوں پر چھوکرے آگ جلانے، پیالیاں دھونے، چائے بنانے اور پھر گاہکوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، اور کبھی ریکارڈ بجاتے، لڑم دے لڑم، وہ مورے رادوں کا لڑم دے لڑم۔ کبھی کوئی خان اپنی شلوار اوپر چڑھا، ٹانگیں رانوں تک ننگی کر کسی ہندوستانی موچی سے جھگڑنے لگتا اور کہتا، ہمارا کابل میں چپل ہوتا، تمہارا دیس میں چپلی۔ یا پھر پہلو والی گرم گرم کلیا پراٹھا کی دکان پر شاہ صاحب، ایک بزرگ سبز پوش، داڑھی مہندی سے سرخ کیے آن بیٹھتے، آنکھیں جلال معرفت کے مارے خونے کبوتر، چہرہ کندن کی طرح تاباں، زلفیں چکنی چپڑی اور عطر بیز۔ ان کے تشریف آور ہوتے ہی عقیدت مندوں کے غول جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ مجہر یعنی مظہر شاہ کے بے تاج بادشاہ جمن رنگ ساز، قمر جلد ساز اور للو مالک، جاتے کہاں ہو کس طرف خیال ہے، گھڑیوں کا بس یہی اسپتال ہے، وغیرہ جیسی ہستیاں آن کھڑی ہوتی۔ گرامو فون کو چابی دے کر ملکہ عالم کا ریکارڈ چڑھا دیا جاتا اور سب لوگ تالیوں کے ساتھ اللہ 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 گانے لگتے۔ اس طرف پیسہ اخبار والا چلاتا، ہٹلر کی پیش قدمی، برطانیہ کا دنداں شکن جواب، جاپان کی برطانیہ کو گیدڑ بھپکی 1 پیسے میں۔ یہ سن کر وہ بزرگ سبز پوش سر کو زور کے ساتھ گردش دے کر نعرہ لگاتے، یا علی، اور پھر وہی اللہ اللہ۔ ادھر یہ ہنگامہ تو ادھر کھجلی کے مارے ہوئے کتے شامی کبابوں کی بو پا کر تھوتنیاں اٹھا اٹھا کر ہوا میں سونگھا کرتے، اور کبھی موقع پا کر کچھ نہ کچھ لے بھی اڑتے۔ کچھ دور جانے کے بعد مہگی پنواڑن کی دکان کے آگے رک گئے۔ مہگی کی عمر 32 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ بدن کی بھاری گورا رنگ نازو ادا کی کمی نہ تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بے تحاشا کاجل، ہونٹوں پر مسی کی دھڑی، پان کا بیڑا بڑھاتی تو اپنی نشیلی اور کٹیلی آنکھیں پہلے تو گاہک کی آنکھوں سے لڑا دیتی، تب شرما کر اور مسکرا کر نظریں جھکا لیتی، اور پنڈلیوں کو دھوتی سے ڈھانپ کر اپنی چاندی کی پازیبوں پر نظریں گاڑ دیتی۔ میلے کچیلے چیتھڑے پہننے والے مزدور، ڈاک خانے کے قریب بیٹھنے والے خطوط نویس منشی یا ہوٹلوں کے گائیڈ نشے کے ترنگ میں آتے اور اسے دیکھ کر مچل جاتے، اپنی اندر دھسی ہوئی مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتے، کبھی اتنا کہنے کے لیے، ہائے ری آج تو گجب کا بناؤ سنگار کر رکھا ہے۔ کبھی کسی کجری کا بول اس قسم کا ہوتا، گھر سے نکسی نند بھوجیا، جلم دونوں جوڑی رے سانوریا۔ اور کبھی پان لیتے وقت اس کی ہتھیلی کو اپنی انگلی سے کھجا دینے کی تمنا میں 1 پیسے کے پان اور 1 پیسے کی 4 والی پری مار کا سگریٹ خرید لیتے تھے۔ چچا کو دیکھتے ہی اس نے جھک کر سلام کیا، ارے پنجابی بابو، کون دیس رہا تو اب؟ مہنگی بس کیا پوچھو،
तुम हमन को भूलत ना। मैगी सर पर आंचल खींच संभल कर हो बैठी और पान लगाते हुए कहने लगी, और वो हमरे लिए तुम चंद्री लान को कहत रहे। चचा सुनी अनसुनी करके उसके लाल लाल गालों की तरफ ललचाई हुई नजरों से ताकते हुए बोले, अब लाओ, देओगी भी नहीं। मैगी कुछ लजा गई और मलामत आमेज नजरों से चचा की तरफ देखने लगी। इतने में और गाहक भी आ गए। मैं जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया। बाएं तरफ बरामदे में एक बुढ़िया किसी चालाक लोमड़ी की तरह सबको ताड़ रही थी। उसके करीब ही टाट पर एक औरत बैठी थी, जिसमें सिवाय इसके के जवान थी और कोई खूबी न थी। नौजवान औरत ने मजमे के आदमियों को अपनी तरफ छुपी नजरों से देखते हुए पाया तो झट से कमीज के बटन खोल गरेबान उलट उलट कर लालटेन की रोशनी में खटमल पकड़ने लगी और गाहे साड़ी हटाकर अपनी टांगें खुजाने लगती। कच्ची और सियाह दीवारों पर पान की पीक के निशानात ऐसे दिखाई देते थे जैसे भूत नाच रहे हों। कमरे के अंदर जापानी औरतों की नीम उरियां फटी पुरानी तस्वीरें नजर आ रही थी। एक तरफ खाट पर बिस्तर बिछा हुआ था और उसके पास ही फर्श पर एक मटियाले रंग का उगालदान भी पड़ा था। एक मर्द ने नौजवान औरत के बाजू की चुटकी लेते हुए कुछ पूछा तो बुढ़िया ने तारीकी में आगे झुककर हलक में से आवाज निकालते हुए आहिस्ता से कहा, 8 आने। तारीक और पेच दर पेच गलियों में से होते हुए हम चले जा रहे थे। कभी कभी किसी गली के नुक्कड़ पर सरकारी लैंप की धुंधली रोशनी में सफा जंग की चमक और मेरी घेरेदार शलवार से खायफ होकर बच्चे घरों में घुस किवाड़ बंद कर लेते थे। कुम्हारों के मोहल्ले के करीब पहुंचकर चचा गंदे नाले की तरफ चल दिए। रास्ता घोड़ों और गधों की लीद से अटा पड़ा था। छप्परों वाले टूटे फूटे कच्चे मकानात थे। कुम्हारों की भारी भरकम औरतें कच्चे चबूतरों पर लेटी रोते हुए नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। गंदे नाले के पुल पर से गुजरते हुए मैंने नाक पगड़ी के शमले से ढांप ली। उसके बाद हम बड़े तालाब के किनारे किनारे चलने लगे। यहाँ शहर भर की गंदगी जमा थी। लोग टट्टी भी यहीं फेरते थे। जब वो उठकर चले जाते तो भंगियों के मोहल्ले से सुअर आकर मुंह मारने लगते। कहीं कहीं कुत्ते दम तोड़ते नजर आते थे। कहीं किसी गधे का पिंजर पड़ा था और किसी तरफ घोड़े के जबड़े के पास कोई गिद्ध मरा पड़ा था। यह कच्चा तालाब बहुत बड़ा था। इसके अंदर कई इंसानों और जानवरों का पेशाब और गिलाजत जमा थी। इसका पानी बहुत गाढ़ा, अजहद बदबूदार और सियाह रंग का था। चांद की चांदनी इसको और भी भयानक बना रही थी। इसकी सतह पर उबले हुए बुलबुले इस तरह दिखाई देते थे जैसे किसी शख्स के जिस्म पर आतशक के जख्म। यहां से गुजरकर बहुत देर तक हम दोनों चुपचाप चलते रहे। आखिरकार चचा एक टूटे फूटे घर के आगे रुके और आवाजें देने लगे, मजीद, ओ मजीदे। मैंने कहा, चचा, आपने फजूल में इतना बड़ा चक्कर लगाया। ये गली वही नहीं जो स्टेशन से आने वाली सड़क से जा मिलती है? चचा दीदे चमकाकर बोले, अरे मियाँ, उधर जाते तो भला ये सैर कैसे होती। बस तुम भोंदू ही रहे। हा हा, उधर क्या रखा था? अरे ओ मजीद, ओ मजीद। हुजूर, गुलाम तो इधर खड़ा है। मैंने घूमकर देखा कि एक लंबा तड़ंगा चौड़े शानों वाला मर्द झुका फर्शी सलाम कर रहा है। बावजूद सर्दी के एक मैला कुचैला तहमत कमर से लपेटे हुए था और जिस्म पर सिर्फ एक चादर। आइए आइए आका, अंदर चले आइए। यह कहकर उसने टाट का गला सड़ा पर्दा उठाया और हम अंदर दाखिल हो गए। कुरान कसम, बैंचो सालों ने जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ पुलिस भी बस खुदा की पनाह है। मैंने इधर उधर देखा। सामने छोटे से सहन के कोने में एक पायखाना, पास ही लकड़ियों का अंबार, गोबर से लिपी हुई कच्ची दीवारों पर उपले, एक तरफ खटमलों से भरपूर टूटी हुई खाट, उधर चूल्हे के करीब मिट्टी के तेल की कुप्पी। उसकी छोटी सी लौ बेपनाह तारीकी से जंग करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चूल्हे के करीब एक बुढ़िया ईंट पर बैठी एक बासी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी, हाथ में प्याज और फर्श पर चटनी का पत्ता। मजीद चचा को बता रहा था कि कैसे उनके मोहल्ले में किसी ने एक हिंदू पर लाठी चला दी, जिससे उसका सर तो बच गया मगर एक कान साफ उड़ गया, और किसी तरह वो चीखता चिल्लाता मोहल्ले के नाके की तरफ भागा और फिर नाके के सहन में बेहोश होकर गिर पड़ा था। और कैसे पुलिस उसको यानी मजीद को नाहक 2 घंटे से कोतवाली में बिठाए दिख कर रही थी और अब कहीं जाकर उसकी खुलासी हुई थी। चचा ये बातें सुनकर कुछ परेशान हो गए। मजीद चूल्हे की तरफ गया, पत्ते में से उंगली पर चटनी लगाकर चाटी और चटखारा लेकर बोला, काहे की है? प्याज की। फिर वो छत से लटकी हुई हंडिया में हाथ डालकर टटोलने लगा। तंबाकू कहाँ है? पोपले मुंह वाली बुढ़िया बोली, वो तबे के पीछे।
मजीद हुक्का पीने लगा। चचा की जानिब देख कर बुढ़िया की तरफ अबरू से इशारा करते हुए बोला, माँ है मेरी। इतने में पर्दा उठा। एक काले कलूटे मर्द ने अंदर झांक कर देखा। कहो मजीद खां, पुलिस में का हुआ? चचा उसकी सूरत देखकर घबराए। उसका सर उस्तरे से मुंडा हुआ, ये मोटी गर्दन, टूटे हुए कान, चौड़े नथने। चचा ने मेरा हाथ दबाया। बतलाएंगे, ये कहकर मजीद उठा और उसके पास जाकर काना फूसी करने लगा। खैर वो शख्स तो चला गया और मजीद फिर आकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। चचा ने पेशानी से पसीना पोंछा, खांस कर गला साफ करते हुए बोले, अच्छा भाई मजीद, अब कुछ मामले की बात होनी चाहिए। हाँ हाँ, मजीद ने सर घुमाकर कहा। फिर बुढ़िया की तरफ झुका। क्यों मां? उसने आंख मारकर कहा। पखाने गई का? बुढ़िया ने दबी जबान में कुछ जवाब दिया। धत तेरी की मां, तू भी अजब ऊल जलूल है। उसने हुक्का रख दिया और अभी आया कहकर जाने लगा। चचा घबरा कर उठ खड़े हुए। मजीद, हम बाहर सड़क पर खड़े होते हैं, तुम उसे उधर ही ले आना। कसम अल्लाह पाक की, पंजाबी बाबू, जिधर हुक्म हो ले आऊं। अच्छा तो हम सड़क पर खड़े हैं। यह कहकर चचा भागम भाग सड़क पर आ खड़े हुए और स्टेशन से आने वाले यक्कों को देखने लगे। चचा, मजीद, एक नौजवान लड़की, बुढ़िया और मैं, कुल 5 अशखास एक तवारीखी बाग की 4 दीवारी के पास खड़े थे। मजीद ने कुछ तवील बयान शुरू कर रखा था और लड़की की तरफ देखते हुए चचा से कह रहा था, रोज पूजा करन जात रही, मैंने समझाया, पगली पूजा से का मिली, चल पंजाबी संग शादी करा दूंगा, बस पंजाब देश जा, गहना कपड़ा पहन, खाना पीना मजा उड़ाना, बस ऐसी धुप्पल में फांस लाया हूं। पंजाबी सरदार, लौंडिया का है, हीरा समझो, गरीब है कोयलों में रखा, तुम्हारे पास जाकर चमक बढ़वा ही करेगी। लड़की की उम्र बमुश्किल 13 या 14 बरस की होगी। गंदुमी रंग, नाक चौड़ी, होंठ जैसे संतरे की फांकें, बड़ी बड़ी जर्द आंखें, बाल खुश्क बदबूदार, हाथों और कलाइयों पर मैल, दुबली पतली सहमी हुई कबूतरी की तरह एक मैली सी फूलदार चादर ओढ़े खड़ी थी। चचा लड़की को लेकर चंद कदम आगे नीम के एक दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। थोड़ी देर खामोशी सी तारी रही। फिर चचा की दबी दबी आवाज आने लगी, क्या नाम? बताओ ना। अरे बताओ। हूं? क्या कहा? अच्छा अच्छा, वाह, खूब नाम है। हाँ हाँ। सर्दी लगती है? हाँ लगती होगी। बोलो ना। तुम तो कुछ भी नहीं कहती, मुंह क्यों छुपाती हो? अरे अरे, रोती हो? अच्छा जाने दो, रोती क्यों हो? लो ना सही। ओ ओ, अरे नहीं। तुम कहा करत हो छोटे पंजाबी? मजीद ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा। पढ़ता हूं। पढ़ा तो हा हा हा, बाबू हो जाओगे। चचा और लड़की वापस आ गए। मजीद ने मुजस्सम सवाल बनकर चचा की तरफ देखा। चचा बोले, अभी झेपती है। मजीद ने लड़की की ठोड़ी उठाकर कहा, अरे शर्माती क्यों है, सोने के कंगन मिलेंगे, चंदरिया मिलेगी। लड़की ने जर्द जर्द आंखों से मजीद की तरफ देखा और फिर लंबी और गहरी सिसकी भरकर खामोश हो गई। बुढ़िया और लड़की को वापस घर की तरफ रवाना कर दिया गया और हम तीनों ताड़ी खाना पहुंचे। यह चचा के रसूख का करिश्मा था कि हमें 3 लोहे की कुर्सियां और 3 टांग की एक मेज मिल गई। ताड़ी की बू हर चहार जानिब फैली हुई थी। सामने जहां दीवार पर एक इश्तिहार गंदी बीमारियों का शर्तिया इलाज नुमाया हरूफ में रकम था, एक चाट वाले की दुकान थी। मजदूर लोग ताड़ी के नशे में मस्त वहां बैंगन के पकोड़े दही डलवा डलवा कर खा रहे थे। दीवार के साय में एक गूंगी भिकारन बैठी थी। उसकी सूरत मकरूह थी और जिस्म पर टाट के चीथड़े लटके हुए थे। जब कोई शख्स दही आलू पत्ता नाली की तरफ फेंकता तो दुबले पतले कुत्तों और उस गूंगी भिकारन के दरमियान पत्ता हासिल करने की कशमकश मजदूर लोगों की मुसर्रत का सामान बहम पहुंचाती थी। वो खुश होते थे कि दुनिया में किसी की बेबजाती पर वो हंस सकते हैं। वो वहशियाना अंदाज से दांत निकाल निकाल कर कहकहे लगाते और उछल उछल कर अपने चूतड़ पीटते थे। मजीद 2 आबखोरों में ताड़ी और एक मिट्टी की चीनी में भुनी हुई कलेजी लाया। ताड़ी फरोश ने एक सुराही ताड़ी से भरकर हमारे सामने रख दी। अब दोनों ताड़ी पीने लगे। लालटेन की धुंधली रोशनी में अजब अजब लोग नजर आ रहे थे। नशे में चूर वाही तबाही बक रहे थे। कहीं टूटे हुए आबखोरे, कहीं चिचोड़ी हुई हड्डी पड़ी थी और किसी तरफ कोई कुत्ता नशे में बेहोश शराबी का मुंह चाट रहा था। चचा ने दोबारा आबखोरा भरकर कहा, लेकिन उसकी टांगें बहुत पतली हैं, कमजोर है बेचारी, अभी उम्र ही का है। बहुत देर तक दोनों में काना फूसी होती रही। फिर मजीद बुलंद आवाज में बोल उठा, अरे या भी हाजिर और हुक्म के गुलाम हैं। वो मिठाई खिलाऊंगा जो एक बारी याद भी करो तुम, मगर जो बात हमने कही वो भूलना नहीं। अरे नहीं साहब,
जब कहो तभी हो जाए, फिक्र का है। इतने में हम एक शराबी की तरफ मुतवज्जा हो गए। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, अरे कोई हमरी भी सुनो, देखो ये लौंडा। अमा जाओ। एक और भारी भरकम पहलवान ने उसकी पीठ पर धौल जमा कर कहा। उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। वो हाथ में ताड़ी से लबरेज आबखोरा लेकर उठा। लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसने छलकता हुआ आबखोरा हवा में बुलंद करते हुए कहा, मैं दीपदास हूं, दीपदास। उसने जोर जोर से खांसते हुए कहा, दुख के, हा हा दुख के अब दिन। इतने में नाई का लौंडा पहले शराबी से हाथ छुड़ाकर भागा। पहलवान ने जोर की लात उस शख्स के रसीद की। अबे ओ, आ इधर आ, चला आ। हाँ बेटे हाँ, तोबा कर, हाथ जोड़, दुआ मांग, देख जैसे मैं मांगता हूं। या इलाही दे लुगाई। और वाओ 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 वाओ। मान उसका तहमत खुलकर जमीन पर आ रहा। उसके मुंह से कै का फुआरा निकल पड़ा और उसके उस्तुरे से मुंडी हुई टांगों पर कै का मेह बरस गया। 3-4 दिन के बाद मैं सिनेमा देखने के बाद 10 बजे के करीब घर जा रहा था। सोचा चलो थोड़ी देर चचा से गप रहे। चचा एक भोजनालय में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रहते थे। ऊपर पहुंचा, मगर दरवाजे के पास जाकर मैं ठिठक गया। अंदर से कुछ बातों की भनक सुनाई दे रही थी। मैंने चुपके से दराज में से झांका। देखा कि वही लड़की खड़ी थी। चचा उसके मुंह पर हाथ रखे हुए थे। मजीद ने आगे झुककर कहा, देख बहुत हरमजदगी करेगी तो हिलाल करके फेंक दूंगा। लड़की ने इंतहाई कर्ब की हालत में तड़प कर खुद को आजाद किया और दरवाजे की तरफ लपकी। वो चिल्लाना चाहती थी मगर मारे दहशत के उसके मुंह से आवाज ना निकलती थी। चचा बड़े जोशो खरोश के साथ झपटे। उन्होंने उसको दबोचा और पलंग पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद लड़की ने जिद्दोजहद बंद कर दी। मजीद निहायत इत्मीनान के साथ गुरु नानक साहब की तस्वीर के पास खड़ा बीड़ी पी रहा था और तस्वीर को एहतराम की नजरों से देखने में मगन था। दूसरे दिन छुट्टी थी। मेरा इरादा था चलकर स्टेशन के बुक स्टॉल से कोई रिसाला वगैरह खरीदा जाए। जब भोजनालय के करीब पहुंचा तो देखा कि चचा सीढ़ियों पर से उतर रहे हैं। मुझे इशारे से बुलाया और पूछने लगे कि भाई इतने दिन कहाँ रहे, दिखाई नहीं दिए। सीढ़ियों के पास ही पंडित जी की दुकान थी। पंडित जी पान भी बनाते और लस्सी भी बेचते थे। चचा को देखते ही उन्होंने दोनों हाथ कोहनियों तक जोड़कर कहा, जय वाहिगुरु जी की। कहिए पंडित जी, चित प्रसन्न है ना। चचा उस वक्त अकालियों वाली पगड़ी बांधे थे, खद्दर का लंबा कुर्ता, गले में पीली रंग की साफी और फिर किरपान। सरदार जी आज तो बहुत देर से उतरे, पंडित जी ने सवाल किया। चचा ने निहायत मतानत से सर झुकाकर जवाब दिया, पंडित जी आज सुखमनी साहब का पाठ करते हुए देर हो गई। इतने में कुछ और लोग भी आ गए। चचा और पंडित जी दोनों ने एक भिखारन को धुतकारा। पंडित जी बोले, माफ कर हरामजादी, नखरे मत दिखा, बहुत देखे। औरत डर कर पीछे हट गई। पंडित जी ने मूंछों को हटाकर गंगा जल की लुटिया मुंह से लगा ली और फिर लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोले, जब फगानियों ने भारतवर्ष पर हमला किया तो यही लोग थे जिन्होंने उनका मुकाबला किया, अबलाओं की रक्षा की। बहुत परोपकारी लोग हैं ये। चचा ने अपने दुबले पतले कमजोर कांधों को हरकत दी और फिर अपनी 9 इंच तलवार को संभालते हुए बोले, पेड़े हैं पंडित जी, 2 गिलास लस्सी। चचा मैं तो लस्सी पीकर आ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कहा। स्टेशन पर जाकर देखा तो इस कदर भीड़ थी कि तिल धरने को जगह न थी। प्लेटफॉर्म तक पहुंचना नामुमकिन हो गया, लिहाजा बाहर से ही तमाशा देखता रहा। एक शख्स ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, बोलो राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल की जय। सारी मखलूक ने गला फाड़ फाड़ कर कहा, राष्ट्रपति जवाहरलाल की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। और जब जवाहरलाल जी बग्घी पर आकर बैठ गए तो इतने में चचा हाथ में गेंदे के फूलों का हार लिए नमूदार हुए। उन्होंने मुताद्दिद बार प्रणाम करने के बाद हार पंडित जी के गले में पहना दिया। मजीद खां भी खद्दर का कुर्ता पहने कांग्रेसी रजाकार की हैसियत से इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। यकायक हटो बचो बढ़ो, जय राम जी की, राम राम, राष्ट्रपति हाँ हाँ नहीं नहीं का शोर बुलंद हुआ और जुलूस शहर की तरफ रवाना हो गया। सब लोग हुब्बे कौमी के जोश में निहायत अकीदतमंदाना अंदाज से गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। चचा की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद थी। जब जुलूस मजीद के मोहल्ले के पास पहुंचा तो सड़क के किनारे भीड़ में मुझे वही मैली कुचैली लड़की दिखाई दी। वो हैरत से फटी फटी आंखों से इन झंडा ऊंचा रखने वालों को देख रही थी। वही गर्द आलूद बाल, सहमी हुई बेजबान सूरत, जर्द जर्द आंखें।
مان गली में से एक कुत्ता निकला और मजीद को देखकर बेतरह भौंकने लगा। वो भागकर भीड़ में घुस गया। एक हवा के झोंके से उस कूचे की खाक उड़ी और चचा की चिकनी दाढ़ी गर्द से अट गई।